A very good morning, my dear students. Once again, welcome to you. My name is Devendra Kumar Tiwari. Today, I will teach you class 10th English Literature book First Flight, chapter 4 from the Diary of Anne Frank. So that, my dear students, we will know about the story before explanation. So that let us start to know the main theme of this story. Annelies Mary Anne Frank, June 12, 1929, February March 1945, was a German born Jewish girl who wrote while in hiding with her family and four friends in Amsterdam during the German occupation of the Netherlands in World War II. Annelies Mary Anne Frank's 12 January, June 12, 1929, फरवरी मार्च 1945 एक जर्मन लड़की थी। वह जन्म से यहूदी थी, जिसने तब लिखा जब वह अपने परिवार के साथ और चार दोस्तों के साथ एम्स्टर्डम में छिपी हुई थी, जब दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी ने नीदरलैंड पर अधिकार किया। Her family had moved to Amsterdam after the Nazis gained power in Germany, but were trapped when the Nazi occupation extended into the Netherlands. उसका परिवार जर्मनी में नाजियों की सत्ता आने पर एम्स्टर्डम चले गए थे, परंतु वे फंस गए जब नाजियों ने नीदरलैंड पर अधिकार कर लिया। As persecutions against the Jewish population increased, the family went into hiding in July 1942 in hidden rooms in her father Otto Frank's office building. जब यहूदियों पर नाजियों के अत्याचार बढ़े तो परिवार जुलाई 1942 में उसके पिता ऑटो फ्रैंक की ऑफिस बिल्डिंग में छिप गया। आफ्टर 2 years in hiding, after 2 years in hiding, the group was betrayed and transported to the concentration camp system where Anne died of typhus in Bergen-Belsen within days of her sister Margot Frank's. 2 साल छिपे रहने के बाद ग्रुप को पकड़वा दिया गया और कंसंट्रेशन कैंप की व्यवस्था में ले जाया गया, जहां एन की टाइफाइड से मृत्यु हो गई। उसका पिता ऑटो, जो केवल अकेला बचा था, युद्ध के खत्म होने के बाद एम्स्टर्डम लौटा और पाया कि उसकी डायरी बची हुई थी। Returned to Amsterdam after the war ended to find that her diary had been saved. Her father Otto, the only supervisor of the group, returned to Amsterdam after the war ended to find that her diary had been saved. Convinced that it was a unique record, he took action to have it published in English under the name The Diary of a Young Girl. यह सोचकर कि यह एकमात्र रिकॉर्ड था, उसने इसे द डायरी ऑफ एन यंग गर्ल के नाम से अंग्रेजी में प्रकाशित करवाया था। कन्विंस्ड कंसर्न दैट इट वाज अ यूनिक रिकॉर्ड, यह एक यूनिक रिकॉर्ड था। ही टुक एक्शन टू हैव इट पब्लिश्ड इन इंग्लिश अंडर द नेम ऑफ द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। यह सोचकर कि यह एकमात्र रिकॉर्ड था, उसने इसे द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल के नाम से अंग्रेजी में प्रकाशित करवा दिया। द डायरी was given to Anne Frank of her 13th birthday and chronicles the event of her life from 12 June 1942
until its final entry of 1 अगस्त 1944। यह डायरी एन फ्रैंक को उसके 13वें जन्मदिन पर दी गई थी और इसमें उसके जीवन की 12 जून 1942 से लेकर उसकी आखिरी एंट्री 1 अगस्त 1944 तक की घटनाएं थी। It was eventually translated from its original Dutch into many languages and became one of the world's most widely read books. अंत में इसका वास्तविक डच भाषा से कई भाषाओं में अनुवाद किया गया और यह संसार की सबसे अधिक पढ़े जाने वाली किताब बन गई। and it became one of the world's most widely read books। और यह संसार की सबसे अधिक पढ़े जाने वाली किताब बन गई। These have also been several films, television and theatrical productions and even an opera based on the डायरी पर आधारित कुछ फिल्में, टेलीविज़न व नाटकीय निर्माण और एक ओपेरा भी बन चुका है। Describing as the work of a mature and insightful mind, the diary provides an intimate examination of daily life under Nazi occupations, and Frank has become one of the most renowned and discussed of the Holocaust victims। एक परिपक्व और अंतर्दृष्टि वाले दिमाग के काम के रूप में वर्णित यह डायरी नाजी सत्ता में रोजमर्रा के जीवन का करीब निरीक्षण करती है। फ्रैंक होलोकास्ट की सबसे अधिक जानी मानी और चर्चित शिकार बन चुकी है। वंस अगेन, एक परिपक्व और अंतर्दृष्टि वाले दिमाग के काम के रूप में वर्णित यह डायरी नाजी सत्ता में रोजमर्रा के जीवन का करीब निरीक्षण करती है। फ्रैंक होलोकास्ट की सबसे अधिक जानी मानी और चर्चित शिकार बन चुकी थी। डिस्क्राइबिंग एज द वर्क ऑफ अ मैच्योर, परिपक्व एंड इनसाइटफुल अंतर्दृष्टि, द डायरी प्रोवाइड्स एन इंटीमेट एग्जामिनेशन ऑफ डेली लाइफ अंडर नाजी ऑक्यूपेशन। तो नाजी सत्ता में रोजमर्रा के जीवन का एक करीब विवरण प्रस्तुत करती, निरीक्षण प्रस्तुत करती है, जिसमें फ्रैंक होलोकास्ट की सबसे अधिक जानी मानी और चर्चित शिकार बन चुकी है। सो दैट इज द आउटलाइन ऑफ दिस स्टोरी। ये इस कहानी की आउटलाइन स्टोरी है, जिसमें हम एन फ्रैंक की लाइफ के बारे में पढ़ेंगे, यहूदियों की क्रूरता के बारे में पढ़ेंगे, यहूदियों के प्रति नाजीवाद का, जर्मनी का जो क्रूर व्यवहार था, उन सब चीज़ों को इसमें एन फ्रैंक ने विधिवत एक्सप्लेन किया है। सो दैट इज द डिस्क्रिप्शन, द आउटलाइन ऑफ दिस स्टोरी, and in next video I will explain this story. So that thank you and have a nice day.